Good morning friends, Sri Ambika School, Standard 6, Subject Science. So today we learn about the हमारा जो 6 चैप्टर है वो फर्दर आगे बढ़ाएंगे. दैट द हार्डनेस. हमने जो शॉर्टिंग मटेरियल में था फर्स्ट हमारा देखा था हमने कि कैसे दो अलग अलग सेपरेशन होते हैं. देन शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा जाना था. नाउ वी आर ऑन शॉर्टिंग विद द हार्डनेस. व्हेन योर प्रेजेंस different material with your hand and some of them is the hand is compressed while other can be easily compressed. Take a metal key and try to compress, stretch with it and surface with the piece of wood, aluminium piece, strong nail, handle, chalk and other material of object. You can easily stretch some of material and while some not can be scratched so easily. Material which can be compressed or scratched easily are called soft, while then some other material which is hard, difficult to the compressed is called hard. For this example, cotton spongy is soft while the iron is hard. Okay, it's not the very big deal क्योंकि हम सबको पता है कि क्या हार्ड है और क्या सॉफ्ट है. अगर तुम लोग हाथों से किसी चीज को कंप्रेस करोगे या खींचोगे, दोनों में से एक चीज करोगे तो क्या होगा, या वो जो खींच जाए या कंप्रेस हो जाए दैट कॉल सॉफ्ट मटेरियल. अगर वो चीज खींचे ना या फिर ऐसे ही रहे तो दैट कॉल हार्ड मटेरियल. तो सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल. ओके, समझ में आ गया व्हाट इज हार्डनेस. किसी चीज को अगर आप कंप्रेस करो यानी दबाओ या खींचो यानी कि स्ट्रेच करो तो उसमें कोई चेंज ना आए, दैट कॉल सॉफ्ट मटेरियल and called hard material. Okay, in appearance material can have different properties like a luster, hardness, be rough and smooth. Can we think of the proportion of the appearance of the material? Okay, कभी भी आप देख सकोगे कि लस्टर्स मीन्स के ज्यादा चमकदार हो सकती है कोई चीज डल हो सकती है, कोई चीज हार्डनेस ज्यादा हो सकती है. तो अदर प्रॉपर्टी आप कर सकते हो जैसे शेप है, अगर किसी की जो सरफेस है वो कभी स्मूथ हो सकती है, कोई रफ हो सकती है. तो और अदर कैरेक्टरिस्टिक आर देयर फॉर दिस प्रॉपर्टीज कि आप अलग इस मटेरियल से भी आप शॉर्टिंग कर सकते हो. देन सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. जो चीज घुलती है वो सॉल्यूबल, जो चीज नहीं घुलती वो इनसॉल्यूबल. कलेक्ट द सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस एंड शुगर, सॉल्ट, chalk, powder, sand, dust, sawdust and the 5 glass of it. Beaker fill with the each about the 2/3 of water. Add a small amount of the sugar to the first glass, salt to be second one. Similarly, add the amount of the other substance into other glasses. Stir the container, each of them and spoon. Wait for the few minutes, observe the happen and then substance adding the water. Note your observation and show. अब 5 चीजें हैं, तुम लोगों ने शुगर ली है, सॉल्ट लिया है, सैंडस ली है, सबको एक पानी के ग्लास में डाल दें, आधा भर के पानी के ग्लास में हिलाकर, स्पून से हिलाकर सबको 5 मिनट के फ्यू मिनट के लिए रख देते हैं. उसमें से कोई चीज होगी वो गायब हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं. दैट हैव बीन डिसअपियर. अगर वो डिसअपियर हो गई तो वो कैसी है, इन पानी में सोल्यूबल है, और जो नहीं हुई और ऐसी की वैसी है तो पानी में इनसोल्यूबल है. तो सॉल्ट आर डिसअपियर कंप्लीटली, दैट कॉल सोल्यूबल. शुगर आर डिसअपियर कंप्लीटली क्योंकि वो पानी में जाओगी तो. देन सैंड इज नॉट डिसअपियर बिकॉज sand is not soluble in water, it is insoluble. Then chalk powder भी soluble नहीं होगा. Then the sawdust is also not soluble in a water. You will be noticed that some substance have completely disappeared or dissolved in a water. We say that this substance are soluble in the water. Other substances do not mix with the water and do not disappear even after we stir off it. और सारी चीजें कभी कभी ऐसा होता है तुम लोग हिलाओगे नहीं फिर भी अंदर घुल जाएगी. कोई चीज ऐसे हिलाने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद घुल जाती है तो स्टर. द लॉन्ग टाइम द सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जो वैसे ही पड़ी रहे थोड़ी देरों के लिए तो इट कॉल इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर प्ले
important role in a function of the body because of it can dissolve large number of surface to liquid also dissolve in a water. Water play an important role in a function of our body because it can be dissolved large number of substance to liquid also dissolve in a water. हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफली सब्सटेंस है सारे वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं. Activity 5. Collect the sample of vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil, kerosene or the other liquid. अब पहले हमने सारी चीजें ली थी वो सॉलिड फॉर्म में ली थी, अब सारी चीजें हम लेंगे लिक्विड फॉर्म में लेंगे. अब लिक्विड फॉर्म में वो सॉल्युबल है या नहीं इसके बारे में देखेंगे. टेक अ ग्लास, tumbler fill with the half with the water and few spoonful of the liquid to his. Stir well, let us take the 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with the water. Repeat the same with the other liquid. As many different liquid were available to you. Write your observation. 4.4 Solubility of some common liquid in a water. Okay, जो हमारी वाटर हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा है विनेगार. विनेगार को हम वाटर में डालेंगे, क्या होगा? दे आर मिक्स, वो एकदम मिक्स हो जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं. Then lemon juice also mix well with the water. Then the mustard oil never mix with the water, उसका layer अलग पड़ जाता है, तो that is not insoluble. Then do not mix. Then coconut oil also do not mix. And then kerosene also do not mix. Kerosene का ऊपर layer दिखेगा, वो mix नहीं होगा. We notice that some liquid get completely mixed with the water and some and not water form in separation layer, which is aside from the sometimes. Some gases are also soluble in a water where other are do not. Okay, Bujo suggests that we also check the liquid that we can. Some liquid other than water पहली is currently known as a gas also dissolve in a water. Okay, कोई चीज ऐसी होती है कि जो हमारे वाटर में soluble नहीं होती, तो वो अल्कोहल में soluble होती है. जैसे कि हम कैरोसिन को वाटर में हम मिक्स करेंगे तो नहीं होगा, बट कैरोसिन को हम अल्कोहल में मिक्स करेंगे तो दैट इज बी मिसिबल, वो मिक्स मेल हो जाएगा. कोई चीज़ है कुछ सॉल्यूशन में मिक्स होती है, कोई नहीं होती, वो सॉल्यूशन के ऊपर, जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके ऊपर है. पानी होगा तो डिजोल्व नहीं होगी, शायद अल्कोहल में डिजोल्व होगी या किसी और चीज में डिजोल्व होगी. डिजोल्व मीन्स सोल्यूबल होगी. The sum of gases also soluble in a water. जो बहुत सारी गैसेस है वो वाटर में सोल्यूबल है. जैसे कि हमने बहुत सालों से पढ़ रहे हैं कि मछली है वो पानी में घुला हुआ या डिजोल्व ऑक्सीजन से सांस लेती है, जैसे मछली हम कहते हैं. सो दैट also pretend that the gas also soluble in a water. There is some gases dissolved in, for example, oxygen gas dissolved in water. Very important from the survivor of the animal and plant that lives in a water. अगर जो हमें सांस लेनी है तो ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पानी में से जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो एनिमल और प्लांट लेते हैं. ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन अ वाटर. अब नया चीज आई कि ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा पानी में या सिंक करेगा, डूब जाएगा. While doing activity, you might have noticed that the insoluble solid separation out from the water. You should have also noticed that some liquid in a activity 5. Okay, ऐसे substance लेने हैं जो insoluble in water है. क्यों? क्योंकि जो soluble हो गए तो वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं कि ऊपर गए या नीचे गए, तो सिंक का और फ्लोट का कोई सवाल ही नहीं आता. इसीलिए ऐसे सब्सटेंस लेने हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर हो. तो हम जो आगे हमारी एक्टिविटीज में जो इनसॉल्युबल है वो सारी चीजें लेंगे. That is some of this material that did not mix water floated in a surface of the water. Other way have sucked in the bottom tumbler. Right? We notice many example object that is float water or sink. Leaves fallen on the surface of pond and tons of the you throw on the pond and few. अब तुम लोग देखोगे कि बहुत सारी जो पानी है उसके ऊपर पॉन्ड है उसके ऊपर लीव्स है, लीव्स सारे
तैर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही हल्के होते हैं, एंड बाकी जो सारे चीजें होती है वो अंदर पॉन्ड के अंदर चली जाती है. सो ड्रॉप ऑफ योर हनी फ्रॉम द फॉलिंग इनटू ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट हैपन टू ऑफ दिस? अगर आप हनी को पानी में डालोगे तो वो धीरे 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 डिजोल्व होता जाएगा और नीचे आ जाएगा. Bujo would like to give him a 5 example of each object that floats and that is sinks water. Which is the testing this is material to see if this float and sinks in liquid. ओके, कोई जो हमारे मटेरियल्स में दिख रहे हैं, जैसे करेला है वो तैर रहा है, वुडन ब्लॉक है वो तैर रहा है, टमाटर है वो तैर रहा है, जो नट्स कीज सिक्के हैं वो सारे डूब गए, सिंक हो गए, एंड देन फ्लोट्स. जो चीजें ऊपर तैर रही है उसे फ्लोट कहेंगे, नीचे जा रही है वो सिंक कहेंगे. जो मोस्ट ऑफली हैवी होती है, जिसके अंदर एयर नहीं होती है, वो सारी सिंक कर जाती है, और जिसके अंदर एयर होती है और जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, वो हैवी नहीं होता है, वो सारी फ्लोट करती है. ओके, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्लीन, दिखना, सामने जो दिखना है उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. You might have played the game hide and seek. Think you some place where you would be like to hide to the not seen other. Why do you choose those place? Would you have tried to? अगर तुम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हो कहीं पे, तो हाइड एंड सीक में क्या होगा, तुम लोग जहां पे भी खड़े होंगे, वहां पे तुम लोगों को दिखेगा स्पेशल वन, कि उसके आगे जो दीवार होगी या कोई वॉल होगी उसके पीछे अब तुम छुपोगे. ऐसा तो नहीं है कि कांच के पीछे छुपोगे. सो यू विल ट्राई टू हाइड लाइक तुम लोग कभी दिख ही ना पाओ, यू नेवर सीन बाय दैट. सो व्हाई यू चूज दैट प्लेस? बिकॉज तुम लोग उसके पीछे दिख नहीं रहे हो. सो ट्रांसपेरेंसी, hide behind the glass window, observably not, as your friend can see through that as what you have. Can you see through all the material? Choose substance or material through the wishes and can be seen, called the transparent. Glass, water, air, some plastics are example of transparent material. Shopkeeper usually prefer to keep biscuit, sweets and the other eatable in a ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास. ओके, तुम लोग जब कभी कुछ चीजें लेने जाते हो, टॉफीज लेने जाते हो मोस्ट ऑफली, तो शॉपकीपर क्या करता है, कांच की बोतल में सारी टॉफीज रखता है. क्यों रखता है? क्योंकि जो कोई देखे तो उन्हें पता चले कि यहाँ पे इतनी टॉफीज मिल रही है या खाने का मन हो जाए. तो मोस्ट ऑफली ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, उसमें रखा है, जिसमें से आप जिस मटेरियल में से आप सीधा देख सकते हैं, दैट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. प्लास्टिक so be buy can be easily see that the items. On the other hand, there are some material through that you cannot able to see. This material also called the opaque. अब जिस चीज के बारे में आप इसके आर पार नहीं देख सकते, दैट कॉल opaque. You cannot tell is keep in closed wooden box and cardboard box, cartoon and metal container. Wood, cardboard and metal are example of opaque material. Wood है, cardboard है, या फिर वो सारे क्या है, opaque material. Do we find we can group all material and object without any confuse and either the opaque or the transparent. अब जो तुम लोग देख रहे हो वो का या opaque होगा या ट्रांसपेरेंट होगा. कोई भी चीज है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफली ओपेक हो सकते हैं या ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं. जैसे कि वॉल इज अ ओपेक थिंग. अब वॉल के पीछे तुम लोग, जैसे कि ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. सो तुम लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड टुक थ्रू द lighted bulb and then observe now 2-3 drop of oil and pressed on the sheet and paper. Look again, the light bulb is through and portion of the paper of the oil and spread. Now you find that bulb is more clear visible than before, but can you see clearly through the oil paper? Is everything on the side of visible? Perhaps not. This material through the object can be seen but not clearly at called translucent. Translucent means
कि तुम लोग ना ही वो ओपेक है, ना ही तुम लोग पूरा देख पा रहे हो, ना ही आपको नहीं दिख रहा ऐसा है, और ना ही आपको पूरा दिख रहे हो. सो दैट कॉल इज द ट्रांसल्यूलेट्स. Remember the only page of the paper when the we test food item or presence of the fat, that is the translates too. Can you think some more example of translate material? अब तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ट्रांसलेट्स होती है कि तुम लोग क्लियरली देख नहीं पाते हो. कभी कभी फॉगी जो हमारा कांच होता है वो भी कभी सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जो ट्रांसक्यूलेट्स कहा जाता है. We can think for group of material as opaque, transparent and translucent. Pehli suggest covering the glass torch with the palm of the dart, switch on the torch and then the side of palm is see to know whether palm your hand is opaque, transparent or translucent. We learned that material different in their appearance and their way they mix water or the liquid. They are flowed, sink, water may be transparent, opaque or translucent. Material can be group of basis of similarity of different their property. Why do you need group material in every life? We often group material in our convenient at the home. We usually store things in such manner that the similar objects are placed together and such arrangement help to locate us them easily. Similarly, grocer really keep all thing biscuit and corner in this shop and all shop at the another while gain of pulse and store some other place. There is another reason why we find such a grouping useful. Dividing material in a make the conversation observe and pattern. This portion will be study more about this higher classes. अब जो तुम लोग देख रहे हो कि हम जो हैं हमें ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है. ग्रुपिज्म हमें एक टाइम के हमें एक जो चीजें हमें ढूंढनी है, वी हैव टू लोकेट दैट थिंग्स दैट वी कैन बी फाइंड इजीली. अगर तुम लोगों को कहीं रखी जाए चीजें, एक बुक्स एक जगह रखी जाए तो आपको सारी बुक्स बहुत जल्दी मिल जाएगी. वैसे ही शॉप में होता है, शॉप में शॉपकीपर होता है, वो एक ही चीज एक जगह रखता है, दूसरी सारी चीजें दूसरी जगह रखता है. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, सॉप की स्मेल है वो बिस्किट में ना आ जाए. दैट इज द ऑल्सो पॉइंट ऑफ दिस. बट ऑल्सो उसे जो शॉप कहा जाए तो वो शॉप की तरफ जाएगा. अगर वो बिस्किट कहा जाए तो बिस्किट की तरफ, चॉकलेट कहा जाए तो चॉकलेट की तरफ. तो दैट मेक इजी लाइफ टू शॉर्टिंग आउट द इन ग्रुप. ओके, सो इसकी हम वर्कबुक करेंगे. इसके बाद हैव अ नाइस डे, गुड बाय.